Hello student, today we start a new chapter motion and measurement of the distance. Motion means change the positions of the object with respect of the time and distance measurement, how can we measure the distance the way to the covered by the object and first of all we discuss about that in this modern time we during the holiday, during the summer vacations, we go to the one palace to another palace by the train, bus, and aeroplane, etc. And you know that the distance covered by the any planet by the special vehicles such as called the spacecraft. They go to the very far distance. We use the different type of the mode of the transport to going to the one palace to another palace to in the in modern time. But we study about story of the transport, like how can I start the transport in the ancient time. In the long ago, people did not have the means of the transport. They used only the buy the food, carry the goods on their back. Later began use the animal to transport, and then after the some start the animal the human beings by the simple log wood boat, and then we start the innovations and make the modern type of the boat by the inspire of the animals of the living of the water. Then after the human beings invention of the wheel, that is the great change of the mode of transport. By this the wheel make the pull cart and use of the animals to pull the cart, moving the one palace to another place. And when we start the 19th century, that invention of the steam engine, then they are the great change, the making the railroad and use the steam engine to carrying the wagon to one place to another place. And then after they start off the invention one by one, then we start the automobile such as the motor car, truck, bus, motor boat and ship, use the means of transport of the water, and aeroplane and 19th century, and the electric train, monorail, supersonic aeroplane, subspace craft. They are made in the many mode of the transport with the that is available in the today. बच्चों इस चैप्टर में हमने अभी मैंने बताया कि मोशन एंड मेजरमेंट। मोशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का समय के अनुसार स्थान परिवर्तन को हम लोग मोशन कहते हैं, और जो दूरी तय करते हैं ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बींग्स या जो भी, तो उसका कैसे उस दूरी को नापते हैं। ठीक है, तो उस इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो दूरी नापा जाता है कैसे, जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, जब आदमी एक जगह जाएगा नहीं। तो देखिए जैसे गर्मी की छुट्टी, इस बार तो कोरोना वायरस से चलते आप लोग छुट्टी में नहीं, घर में ही है, तो आप लोगों को मौका नहीं, लेकिन प्रीवियस जो इससे पहले वाले छुट्टी में आप गए होंगे नानी घर या कहीं भी गए होंगे, तो उसके लिए भी क्या होता है कि या तो अपना कार इस्तेमाल किए होंगे, या तो ट्रेन से गए हों, या तो बस से गए होंगे, है ना। कुछ लोग जो आते बाहर घूमने के लिए एरोप्लेन से भी गए होंगे। ठीक है, तो और एक बात और है कि जैसा दूरियां हैं उसके हिसाब से हम लोग आजकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर नज़दीक जाना है, दूर जाना है, और तो जैसे अभी अमेरिका जाना है तो आप तो कार से जाइएगा नहीं, उसके लिए तो एरोप्लेन ही चाहिए या पानी जहाज चाहिए। यानी कहने मतलब हम लोग उसके हिसाब से, यानी कि आज जो है दूरियां जो है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है पहले की अपेक्षा बहुत सुदृढ़ हो गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए मार्स पर जाने से अभी तो दूसरे ग्रह जो हमसे बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहाँ पर देखिए ये कभी पाथ फाइंडर का नाम सुने होंगे, है ना, जैसे चंद्रयान का नाम सुने होंगे। ये सब जो क्या है कि वहाँ पर वो जो हमसे बहुत दूर है उसके लिए स्पेशल स्पेस क्राफ्ट रहना जाता है, जिससे वो वहाँ पर जाया जाता है।
तो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट की स्टोरी यानी कहानी कैसे शुरुआत हुई। तो अगर हम देखें पहले का लोग, जो पहले की बात हम लोग, आज के डेट में तो है कि मजबूरी बस है, तो देखिए कि कोरोना वायरस से चले लोग पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन देखिए सरकार उसको तो देखते हुए तुरंत फिर ट्रेन व्रेन चलाई। ठीक है, तो कारण क्या सुविधा है हमारे पास अभी। तो पहले के लोगों के पास कोई सुविधा नहीं था, पहले वही पैर से, तो वही 11 नंबर बस, दोनों पैर से चले और अपना सामान को पीठ पे लटका दिए और चल दिए। ठीक है, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर लोगों ने क्या किया कि एनिमल का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो लेकिन सब उससे पहले भी, पहले चूंकि जितने भी सभ्यता शुरुआत हुआ है वो पानी के नज़दीक हुआ है, तो पानी के नज़दीक हुआ है तो वहाँ पर लोग पहले क्या हुआ कि वो लकड़ी पर किसी तरह से बनाकर जो होलो जो छेद होता है उस पर ऐसा वो देखा कि वो डूबा नहीं हो, उससे लोग एक जैसे दूसरे आसानी से चले गए पानी में, वो आसानी भी होता था। तब फिर देखा कि कुछ अच्छा बनाना चाहिए, तो फिर उन्होंने एक बोट बनाना शुरू किया शुरुआती दौर पर, वो मछलियों और वो सब जो जानवर होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तब फिर लोगों ने लकड़ी वेल का यानी चक्के का आविष्कार किया, जो बहुत ही चेंज हुआ ट्रांसपोर्ट में, यानी कि कहने वाले। तब फिर क्या किया गया कि उसके लिए बनाया गया बैलगाड़ी, जो अब तो आजकल तो कोई चढ़ते नहीं है, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सब तो अब फिल्मों में और इस सब में की बात हो गई है, अब तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज का मेरे हर जगह तो आपका गाड़ी का भरमार हो गया है। ठीक है, तो पहले लेकिन देखिएगा कि वो जो पहले के लोग थे वो मतलब कि उसके बाद जो शुरुआत हुआ, जो व्हील का शुरुआत हुआ, तो फिर लोगों ने क्या किया कि चक्के का आविष्कार के बाद उसको बैलगाड़ी बनाया। बैलगाड़ी के बाद उसमें उस पर क्या हुआ कि बैल को या घोड़े को इस्तेमाल करने लगे उसको खींचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी लोगों को ज़रा मन भरा नहीं, यानी कहने वाला फिर 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ आपका इस स्टीम इंजन का, जिसके बारे में आप सुने होंगे। जो स्टीम इंजन का आविष्कार जब हुआ तो उसके बाद उससे बना स्टीम से चलने वाला रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी बना, तो उसके बाद रेलगाड़ी चलने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लोग जाने लगे, यानी जिसमें बैलगाड़ी या कोई जानवर का इस्तेमाल नहीं होने लगा। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों लोगों ने बहुत से मेहनत करके फिर बाइक बनाया, मोटर कार बनाया, ट्रक बनाया, बस बनाया। ठीक है, और अब तो कहने का मतलब है कि एक से एक अच्छे अच्छे, जैसे कि पहले देखिएगा, पहले सोचते थे कि स्टीम का इंजन होगा या अगर ट्रेन में उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी पॉसिबल हुआ। आज देखिए आपने कभी अगर ट्रेन का सफ़र देखिए, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें एकदम वायर ऊपर टच हो जाता है, चलते रहता है, और वो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा। मोनोरेल बना, सुपरसोनिक एरोप्लेन बना, स्पेस क्राफ्ट हुआ, जिसे रफाल फाल की बात सुने होंगे, जो आजकल हमारे रक्षा में बहुत योगदान है हमारे देश में, जो आपको वायुसेना इस्तेमाल करती है। तो ये सब का बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ, और यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही चेंजिंग हो गया। पुराने से ये कहानी है ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नाइज होने का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अब जो दूरियों को कैसे नापेंगे। तो फिलहाल तो ज़्यादा दूरी को नापना नहीं है, हम लोग को नज़दीक पहले की डेस्क को कैसे नापेंगे, कैसे नापा जाता है। ठीक है, अब पहले के लोग कैसे नापते थे, जैसे आज तो अब हमारे पास सारे सुविधा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले लोग कैसे, पहले के लोग कुछ अलग है। जैसे कि जिस तरह की एक ट्रांसपोर्ट की कहानी है, उस तरह से मेजरमेंट की भी कहानी है। ठीक है, कि पहले के लोग कैसे नापते थे, पहले के लोग हाथ से, ये से था, वो सारे कुछ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के यहीं तक, थैंक यू।